Hello, listeners. Welcome to this podcast. In this today's audio article, we'll be discussing about dietary principle of state policies, which is in part 4 of our Indian Constitution and starts from Article 36 and goes up till Article 51. I'll be speaking both in Hindi and English variants. I will expect at least you to understand this much English, because if you are, and my target audience is the competitive exams that are going to nowadays. And primarily SSC. I'm also an aspirant, so I hope I could help you a little bit in your preparation. So let's begin. The dietary principle of state, and also additional information that this will be all the theories from Manohar Pandey that is written. I'm just going to narrate it so that you can listen while you are sleeping or going anywhere else. Okay, so let's begin. The dietary principle of state policy are enumerated in part 4 of the Indian Constitution, Article 36 to 51. The basic thing. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि dietary principle DPSP जो है ना, they are in what? Part 4 of our Indian Constitution, भारतीय संविधान के Part 4 में है. आर्टिकल अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये सभी चीजें लिखित है. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Constitution. B.R. Ambedkar ने novel feature कहा था इन्हें. And also DPSP along with fundamental rights contain the philosophy of the Constitution and soul of the Constitution. Majorly, in many times this question have been asked in MCQs that what is called the soul of the Constitution. So normally it is written that in option we can find fundamental rights. But if there is no fundamental rights written but DPSP is there, so we'll have to mark that one. Okay, now talking about the features of DPSP, what are those? So these are the constitutional instructions to the state and legislative, executive and administrative matters. So state here words has something, it doesn't mean like if I'm talking about UP, so बस UP तो एक स्टेट है, वैसे ही हमारा इंडिया भी एक स्टेट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कंट्री और एक स्टेट भी कहा जाता है. स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, राइट. सो यहाँ पे DPSP स्टेट मीन्स इंडिया और किसी पर्टिकुलर स्टेट यूटी पे भी लागू होता है. Now, it resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act 1935. 1935 संविधान जो एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसको ये रिसेंबल करता है, उसी के तौर पे ये लिखा गया है. They constitute the comprehensive economic, social and political program for a modern state. They promote social and economic democracy. They embody the concept of a welfare state. So India is what? हमारा देश एक welfare state है, right? So many times it can be in your MCQs that India is a welfare state or not. तो हम कहेंगे yeah, totally. हमारा देश एक welfare state है. They are fundamental in governance of the country. That is very necessary. They are non-justiciable. What does that mean? DPSP non-justiciable है, मीन्स इसकी अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस पे नहीं है. लाइक फंडामेंटल राइट पे होता है, लेकिन DPSP पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है. They apply to both union and state governments and all other authorities coming under the definition of state. As I have discussed earlier, कि state का definition हमारी country के लिए भी use होता है और किसी particular छोटी territory जैसे हम state बोलते हैं, जैसे यूपी, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और असम, whatever. So all these things are states. All these territories are states. Sorry. Now classification. So majorly जो classify किया गया DPSP को 3 categories में classify किया गया है. That is all the articles are classified in three classes. The first one is socialistic, second is Gandhian and third one is liberal intellectual. Right? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में, सामाजिक प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट, समाजवादी प्रिंसिपल्स के बारे में. सो दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. They lay down the framework of democratic socialist state, aim at providing social and economic justice and set the path towards welfare state. Right? सबसे पहले Article 38. What does this says? It to promote the welfare of the people by securing a social order permitted by social justice, social, economic, and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. That is Article 38. So 38 में बेसिकली हमने क्या सीखा कि हमें सोशल ऑर्डर को जो भी दिया गया है ना उसे सिक्योर किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटीज होती है उनको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट को कहा जाता है, राइट. जो भी इनइक्वालिटीज पहले से एग्जिस्ट करती थी हमारी सोसाइटी में उन्हें मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है आर्टिकल 39 में. एंड मेजरली ये आप मान के चलो कि ये कोई रूल नहीं है, इट जस्ट दीज आर काइंड ऑफ एडवाइस टू द
states, right? Now, Article 39, to secure a right to adequate means of livelihood for all citizens, सभी जो citizens होते हैं हमारी स्टेट की टेरिटरी में, उनके livelihood मीन्स उनके जीविकोपार्जन का माध्यम हो, उनके लिए ये कहा गया है आर्टिकल 39 में. एडिशनली और भी क्या है इसमें कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड. अनदर वन इज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी प्रिवेंशन बहुत सारे हर्ड जैसे मेजर टाइम पे लाइक पीपल स्टॉक salt or onions, right? So similarly there's a few people like billionaires what do they do? वो वेल्थ को कंसंट्रेट करके रखते हैं, या फिर हमारी किसी सोसाइटी में भी ऐसी चीजें मौजूद हैं, वेल्थ का कंसंट्रेशन होता है, तो इन्हें प्रिवेंट करना है. गवर्नमेंट को एडवाइस दिया गया है. अनदर वन इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर men and women. Like these things are majorly in news these days. Many women these days reach this voice that they are not getting paid equally to men, right? So this thing is written in Article 39 of our Constitution, Part 4 in DPSP. Okay. So prevention of the health and strength to workers and children against the forcible abuse and opportunities for healthy development of children. Okay. So this was all in Article 39. Additionally, there is Article 39A. What does this say? So it is an amendment part. In 42nd Amendment, the Article 39A was added, and it says to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. Right? 42nd Amendment में जो चीजें ऐड की गई थी Article 39A में, that is to promote equal justice एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. जो कि कोई भी गरीब इंसान है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कोई एक पर्सन है जो इकोनॉमिकली कुछ जस्ट एडवोकेट या लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता. सो इन दैट केस स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज अ लॉयर और एडवोकेट फॉर हिम और हर, राइट? Now, Article 41, to secure the right of works, education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability. So, majorly if we are aspirants, अगर आप aspirant है किसी particular exam के, तो आपने देखा होगा कि जो भी शेड्यूल कास्ट होते हैं, लिविंग शेड्यूल कास्ट, जो भी ओल्ड एज पीपल्स होते हैं लाइक रिटायर्ड पर्सन्स, इन सम केसेस एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए भी अलग से वैकेंसी निकाली जाती है. बट द एग्जाम वी अप्लाई फॉर, इन दैट देयर इज स्पेसिफिकली मेंशन ऑफ स्पेशली डिसेबल्ड पीपल, राइट? उनके लिए भी अलग से एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज निकाली जाती है. सो दैट इज स्लाइटली रिटन इन आर्टिकल 41, okay, of Part 4. Now, talking about Article 42, what does this say? To make provision for just and humane condition for work and maternity relief. So now, again, if you are a female student, तो अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता हो, आप क्यूरियस होंगे कि आपको मैटरनिटी लीव मिलेगा या नहीं, एंड actually one needs it. And also there was some conversation going on about fraternity leave as well, right? So maternity leave के बारे में आर्टिकल 42 में मेंशन किया गया है पार्ट 4 में. Now आर्टिकल 43, it says to secure a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers. जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए लिविंग वेज जो होता है, जो उन्हें काम के बदले कुछ इनकम दिए जाते हैं, दैट इज, और स्टैंडर्ड लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज जो भी कंपनी में होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए जाए, दैट इज एडवाइजेबल. अगेन आर्टिकल 43 को अमेंड किया गया था, जो कि 43A बना, दैट इज ऑल्सो इन 42nd अमेंडमेंट. 42वां संशोधन जो हुआ था संविधान का, उसी में ये ऐड किया गया. इट सेज टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट होता है ना, उसमें वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाए. दैट वाज द एडवाइस गिवन इन आर्टिकल 43A. Article 47, it says to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health. राइट, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में कहा गया है. नाउ सो ये सभी आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था. आई एम रिपीटिंग, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमने आर्टिकल 38 पढ़ा. 39 का जो अमेंडमेंट 39A था वो आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, 43A एंड 47, ये सभी आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल समाजवादी विचारधारा में आते हैं. अब हम आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे. सो
एक्चुअली संविधान बनने के बाद जो गांधी जी के विचारों से बहुत ही लोग प्रभावित थे, तो उनके भी बातों को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान को थोड़ा सा मोल्ड किया गया था। सो फर्स्ट आर्टिकल जो कि इसमें मेंशन किया, दैट इज आर्टिकल 40। सो इसमें कहा गया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। सो ये विलेज पंचायत का आइडिया गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आर्टिकल 40 में ये मेंशन किया गया, पार्ट 4 of our constitution. Again, article 43 to promote cottage industries on an individual to or cooperation basis in rural areas, right. article 43 socialist principle में भी था, again हमने गांधी प्रिंसिपल में पढ़ा, ठीक है। article 46 says to promote the education and economic interest of SCs, that is scheduled caste, and STs, scheduled tribes, and other weaker section of the society, and to protect them from social injustice and exploitation. So primarily at that time, at the time of our independence or prior than that, हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें थी भेदभाव जैसे कि जो बैकवर्ड क्लासेस जो थे वो मेन स्ट्रीम से पीछे थे, तो उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, उन्हीं को आगे लाने के लिए एजुकेशन में के सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में बढ़ाने के लिए आर्टिकल 46 में मेंशन है। अगेन आर्टिकल 47 इट सेज टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अगेन ये गांधीयन प्रिंसिपल कैसे है, तो वी कैन जस्ट थिंक दैट गांधी विल नेवर एडवाइज अस टू ड्रिंक सम अल्कोहलिक ड्रग्स और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो Article 47 comes in Gandhian principle and it's in written part 4 of DPSP. Right, again Article 48 to prohibit the slaughter of calves and other milch word जो है यहाँ पे ये मिल्किंग एनिमल के यूज किया गया है, एंड ऑल्सो ड्राउट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। सो ड्राउट कैटल मीन्स जो नॉर्मली हम एनिमल हस्बेंड्री लाइक एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो बैल वगैरह का यूज करते हैं, सो दे आर ड्राउट कैटल्स। सो बेसिकली जिन्हें भी हम हमारे भारतीय समाज में जिन भी पशुओं को पाला जाता है मेजरली फॉर आवर लाइवलीहुड पर्पसेस, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 48 में कहा गया है। Okay, so that was Gandhian principle and part 4 of our DBSP. Now let's come to liberal intellectual principles. इसमें हमने हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल 44, इट्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे भारतीय क्षेत्र में सभी अलग अलग तरह के अलग अलग समाज है, सभी की विचारधाराएं अलग है, सभी की कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग है, राइट। जैसे कि अगर हम कम्युनिटी वाइज रिलीजन वाइज बात करें तो हिंदुइज्म, पारसी, मुस्लिम, इस्लामिस्ट और भी बौद्ध, बुद्धिस्ट, सभी का जो मैरिज एक्ट्स है सभी के वो डिफरेंट है। सो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि उन सभी को न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन सभी को अबॉलिश करना है, बट दिस आर्टिकल सीज टू गिव देम इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन ऑल द सिटीजन्स, ये उनको इकोनॉमिक या फिर रिलीजन के बेस पे उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। दैट्स एन आर्टिकल 44, ओके। Now, Article 45 says to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So पहले ये 6 year था, उसके बाद 14 years हो गया है, जो कि 45A में कहा गया है। 45A अमेंडमेंट आर्टिकल है कि बचपन में जो अपने प्राइमरी एजुकेशन हमने भी लिया है, so that was protected under the government, right? And we have that right. So now Article 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 48A. 48A says to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आजकल ये भी चीज़ें कई बार न्यूज़ में रहती है, फॉलो एनी न्यूज़ पेपर, कि जो वाइल्ड लाइफ है उनकी वो खतरे में है, या फिर जो एनिमल्स हैं वो भी खतरे में है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं। सो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के बारे में आर्टिकल 48A जो कि अमेंडमेंट पार्ट है उसमें कहा गया है। नाउ 49 टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। सो वी ऑल नो दैट वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, we have long culture, we have lots of things across India. So उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, इसके लिए आर्टिकल 49 में ये मेंशन किया गया है। सो वी शैल प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक प्लेसेस एंड ऑफ एनीथिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50
to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. Again, this is very important to know. ये judiciary को executive से separate करता है. Article 50 is the article which separates judiciary and executive. Judiciary means न्यायालय को कार्यपालिका से separate करता है. ठीक है. Now, Article 51 to promote international peace and security and to maintain just and harmonic relation between nations, to foster relations between nations, to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlements of international disputes by arbitration. So basically ये हमें Article 51 में मेंशन किया गया है कि आप वैश्विक रूप से वसुधैव कुटुंबकम जो नारा हम हर एक जगह देते हैं ना, उसी को फॉलो करना है. बेसिकली ये वही Article 51, that's it. Okay. Now, मेजरली एक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है ना, ये लगभग दोनों राइट्स की तरह ही हैं, लेकिन देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस, राइट, दैट वी नीड टू नो. एंड ये बहुत सारे एग्जाम्स मैंने सीडीएस के कुछ पेपर्स देखे जिसमें भी बहुत बार पूछे गए हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट fundamental rights are non-justiciable. Fundamental rights are justiciable, but DPSP, Directive Principle of State Policy, are non-justiciable, right? So fundamental right का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी नॉक कर सकते हैं. कोर्ट में आप जाकर के उसके बारे में जो भी चीजें अपील कर सकते हैं. बट डीपीएसपी के वायलेशन के बारे में आप ये कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डीपीएसपी पे नहीं है, राइट? ना फंडामेंटल राइट को मेजरली नेगेटिव कहा जाता है स्टेट के लिए, क्योंकि अगर स्टेट के व्यू पॉइंट से देखें तो अगर स्टेट कोई भी लॉ एक्ट पास कर रही है और अगर सोसाइटी की वेलफेयर में है लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वो वायलेट कर रहा है, तो ये स्टेट के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. दे थिंक लाइक दैट, राइट? व्हाइल डीपीएसपी इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन पीपल, इट्स ऑल अबाउट अ सोसाइटी, राइट? तो ये फंडामेंटल राइट को कभी ओवरलैप करके भी आ सकता है. सो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, राइट? सो डीपीएसपी एक पॉजिटिव व्यू रखता है स्टेट के लिए, बट फंडामेंटल राइट नेगेटिव व्यू रखता है स्टेट के लिए. ऑलराइट, नाउ अगेन फंडामेंटल राइट दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में एस्टैब्लिश करना चाहता है, व्हाइल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, राइट? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहता है डीपीएसपी, right? So these have legal sanctions. Fundamental rights have legal sanctions. इस पे legal sanctions यूज किया सकता है, लेकिन DPSP पे moral and political sanctions का यूज हम कर सकते हैं. Now, again, which I have discussed earlier, कि fundamental rights welfare of the individual के बारे में है, right? Hence they are personal and individualistic, और इसीलिए इसे नेगेटिव भी बोला जाता है स्टेट के द्वारा. अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी है, पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के बारे में होता है. Hence they are socialitarian and socialistic. Okay. Now again fundamental right, the courts are bound to declare law violate of any of the fundamental rights as unconstitutional and invalid, right? अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो उसे कोर्ट होल्ड कर देगी. बट इन केस ऑफ डीपीएसपी की वायलेशन, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर दैट. कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर लॉ वायलेशन वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डीपीएसपी as unconstitutional and invalid. However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect on directive principle of state policy. All right. Now, again, DPSP के बारे में और भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि अमेंड किए गए थे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39A. 39 का ये अमेंडेड पार्ट है. 39A दैट इट सेज, हमने कुछ डिस्कस किया, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, राइट? 42nd अमेंडमेंट है 1976 में. 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था. आर्टिकल 39A में ये कहा गया है कि टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर. जो भी लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते, मींस किसी भी केस के अगेंस्ट लीगली वो प्रोसीड नहीं कर सकते, तो वो उन्हें स्टेट के द्वारा जो भी लीगल एड है वो ऑफर किया जाएगा. ऑलराइट. नाउ 39F से और भी बाद में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दैट इज 39F एज वेल. सो इट इज आल्सो 42nd अमेंडमेंट इन 1976, 1976 में ही किया गया था. टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन.
ओके, चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर रहा है वो थर्ड एंड एफ में मेंशन किया गया है। 43A, आर्टिकल 43A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगेन ये 42वां संशोधन अनुच्छेद 43A के बारे में कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनके इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 43B, अनुच्छेद 43B में कहा गया है टू प्रमोट प्रोफेशनली रन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011 में 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था, संवैधानिक संशोधन जो किया गया था, उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना उनको प्रोफेशनली प्रमोट करने के लिए कहा गया है। अगेन आर्टिकल 48A, इट सेज, ये भी 1976 में 42वां संशोधन है, 42nd अमेंडमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 42वां संशोधन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 48A में। ठीक है, अगेन 38 इसका सेकंड जो था, 38 का सेकंड, इट एडेड वन मोर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP which requires the state to minimize inequalities in income status, facilities and opportunities under the article 38, राइट। ये भी 44वां संशोधन है, 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। 42वां संशोधन 76 में और 44वां 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। और भी कुछ डायरेक्टिव्स स्टेट्स के लिए हैं जो कि पार्ट 4 के बाहर मेंशन किया गया है। व्हाट आर दे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टिव included in part 4, there are some other directives contained in other parts of the constitution. Claims of members of scheduled caste and scheduled tribes will be taken into consideration consistent with the maintenance of efficiency in administration in the appointment of public services. आर्टिकल 335 335 अनुच्छेद में ये कहा गया है, it is the duty of every state and local authority to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue. ये मैं फिर से रिपीट करूंगा कि स्टेट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी बच्चे होते हैं उन्हें उनकी मदर टंग में, मीन्स मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। प्राइमरी जो भी शिक्षा होती है वो मदर टंग में ही दिया जाए, राइट, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और ये आपको आर्टिकल 350A में मेंशन किया गया था, मीन्स ये भी अमेंडमेंट करके द्वारा ही लाया गया है। ओके, नाउ it shall be the duty of the union to promote Hindi language amongst the people of India so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of the art India. It is in article 351 351। अनुच्छेद 351 में ये मेंशन किया गया है कि जैसे हमारे भारतीय क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को छोड़ के हम अंग्रेजी पे ज़्यादा ध्यान रहे हैं, तो किसी एक भाषा जिसे ज़्यादा संख्या में लोग बोल रहे हैं, जो कि मेजरली हमारे यहाँ पे हिंदी है, तो उन्हें प्रमोट करने के लिए ये निर्देश दिया गया था स्टेट को। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव इन DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप फिर से सुनना चाहते हैं ऑडियो, प्लीज फॉलो अस। थैंक यू।